ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮੈਨਸ ਵੈਨਸਡੇ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੋਕਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੋਕਲਿਸਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੀਰਜਾ ਆਪਟੇਕਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਰਜਾ ਆਪਟੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਿਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੀਰਜਾ ਆਪਟੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੋਕਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਰਜਾ ਆਪਟੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨੀਰਜਾ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਮਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ। ਨਮਸਤੇ। ਨੀਰਜਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸੌਖੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਮੂਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੀਰਜਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਨੀਰਜਾ ਆਪਟੇਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਰਜਾ ਆਪਟੇਕਰ? नीरजा तो एक सामान्य लेडी है। जैसे हम लोग कहाँ न कहाँ घर में जो एक फैमिली में पैदा हुए होते हैं,
बट जहाँ मैं पैदा हुई पुणे में, वही शिक्षा का माहौल बहुत ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा है। और वही मेरी पहचान बचपन से, तुम लड़की हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, या ऐसे कोई बाउंड्रीज वगैरह नहीं डाली कभी भी। अच्छा। लड़की है या लड़का हो, आपको ये सभी कुछ की शिक्षा, जो भी कलाएं है, अभ्यास है, स्पोर्ट्स है, घर में घर के काम है, तो आपको सभी कुछ आना चाहिए। और जितने भी मेरे जो मैं बहुत फॉर्चुनेट रही कि मेरे जो दादाजी थे, वो बहुत जाने माने संस्कृत और इंग्लिश के स्कॉलर रहे, पंडित रहे। और उनकी समाज में भी बहुत ज़्यादा मान्यता थी कि वो एक योगी थे। तो हमेशा सभी लोग, कोई भी धर्म के हैं, कोई भी जाति पंथों के हैं, वो बहुत प्यार से उनसे कभी सलाह पूछने आते थे। और मेरे साथ हुआ ऐसा कि मेरे जो दोनों भी मदर फादर, वो अपने अपने जॉब में बहुत बिजी रहते थे। तो मुझे मेरी माँ इतनी दिखाई नहीं देती थी एवरीडे। तो मेरा जो बचपन है वो पूरा का पूरा, उसकी याददाश्त मेरे दादा दादी के साथ गुजरा। तो मैं उनके साथ, जितने भी लोग हमारे घर में आते थे संस्कृत सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, पोएट्री लिखी है, संस्कृत का बहुत लिटरेचर। तो मैं उनकी पहली लिसनर थी कि कभी कभी सुबह 4 बजे उठा के बोलते थे कि मुझे ये अभी सूझा है, तो मैं उनकी फर्स्ट लिसनर थी कि अभी ये काव्य किया है मैंने, ये है। और अपने दिल की बात मेरे दादाजी मेरे साथ बहुत बहुत, मैं जैसे मैं एक ही बात बोलती हूँ कि घर के मेरे, चाहे पिताजी हो, दादाजी हो, मेरे नाना हो, मामा, जो भी है, तो हम लोग एक दूसरे से एक अपना जो नज़दीकी दोस्त होता है उसकी तरफ से बचपन से बात की है। कभी ऐसा कि ये बाबा पुरुष है, ये बात मैं कैसे कहूँ कि मेरा अभी पेट दुख रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। तो वो जो भी था, वो हमारे घर में जो भी कुछ उस टाइम, दादी, हम अज्जी बोलते हैं, वो घर में नहीं है लेकिन दादा है, कि बाबा दादा मेरे को अभी थोड़ा ऐसा क्रैम्प लग रहा है, मुझे ऐसा वियर्ड लग रहा है। तो बोलते थे, भाभी तू थोड़ी बैठ जा, मैं तुम्हें कुछ कॉफ़ी या कुछ, तुझे क्या चाहिए वो मैं करके तुम्हें देता हूँ। सो इन्हीं ओपननेस सी, बहुत ओपननेस। वहीं महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में जो पुणे है वो एक्टिविज़म का और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव शहर है, जहाँ महिलाओं की पहली स्कूल वो पुणे की है। जो MBBS MD डॉक्टर है, वो डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, वो पुणे की है। तो वहीं हमें वो एक जो कल्चर मिलता है कि वहाँ आपके जो पहनावा है, आप क्या मेकअप लगाते हो, आप कैसे बात करते हो, उससे ज़्यादा आपके गुण कौन से हैं, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ये बच्चे को उसका जो एक नॉट जस्ट ड्रीम बट वो एक्शन में, वो 2 साल का हो जाता है लड़का लड़की, उसको सिमिलरली उसमें सिखाना शुरू कर देते हैं, डांस सिखाना शुरू कर देते हैं, संगीत सिखाना शुरू कर देते हैं, स्पोर्ट्स में डालते हैं, संस्कार वर्ग में डालते हैं, संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। और उसमें कोई लड़का लड़की में बिल्कुल ही फ़र्क नहीं कि तुम ऐसे मत बैठो, ये मत पहनो, तुम शॉर्ट मत पहनो, या वो चीज़ होती ही नहीं कभी। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਨ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। एजुकेशन ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ द्वार ਸੀ ਉਹ ਬਿल्कुल ओपन ਸੀਗੇ। जो हम करना चाहते हैं वो पहली चीज़ ऐसी है कि अपना बच्चा है तो हमारा जो एक अपना अपना कल्चर होता है, हर एक स्टेट की एक अपनी क्या बोलते हैं स्वभाव है। तो जो महाराष्ट्र का स्वभाव है वो, उसको बहुत लोग हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं। अच्छा। और महाराष्ट्र धर्म अपना धर्म, इसका मतलब नहीं कि ये हिंदू है, ये है। तो महाराष्ट्र धर्म का मतलब ही ये है कि वहाँ स्त्रियाँ पुरुष ये है वो एक से एक बराबर है। आप ब्राह्मण हो, आप कौन सी भी जाति जमाती के हो, आप वहाँ देखोगे कि दलित भी है लेकिन इतनी बढ़िया संगीत में आगे बढ़ चुके हैं, इतनी लिटरेचर में आगे बढ़ चुके हैं, मेडिसिन में आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि कभी वो लड़का लड़की में फ़र्क नहीं। और उसका जो कल्चरल रूट है,
तो हमने सभी ने सुना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठों ने ब्रिटिश आने के पहले 200 साल पूरा भारतवर्ष पे राज किया था जी। और शिवाजी महाराज उनकी पहली गुरु थी जिजामाता, उनकी मदर। तो ये बात है कि हर एक बेटे को अपनी जो मदर है वो मदर पहली गुरु होती है। और जो लड़कियां हैं उनमें से बेस्ट एग्जाम्पल झांसी की रानी जी। तो झांसी की रानी का जो सच्चा नाम था वो था मनकर्णिका तांबे, मराठी ब्राह्मण की फैमिली में। और एक एग्जाम्पल दे दूं कि अहिल्याबाई होळकर, वो तो दलित कम्युनिटी से थी। लेकिन लड़की हो या लड़का हो, लड़कियों को की परख उनके गुण पे, उनकी बहादुरी से, उनकी एबिलिटी ऑफ डीलिंग विथ अदर पीपल, उससे जानते थे। और तलवार चलाना, सेल्फ डिफेंस, फिर गीता का ज्ञान हो या भाषाओं का ज्ञान हो, संगीत का ज्ञान हो, वो कंपलसरी बचपन में सभी को अभी भी दिलाया जाता है। और उस टाइम तो बाप पहले अपने बेटी को बहुत तैयार करता था कि वो ना बाहर जाके डरे। और अभी भी मैंने मेरी माँ का एग्जाम्पल है, उन्हीं के टाइम में तो बहुत मॉडर्न ज़माना था, वो लोग स्कर्ट पहनते थे, साइकिल पे जाते थे। तो रात को भी हम लोग कभी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी नाटक से आए। अच्छा। या ऐसे घूमने गए, कभी आइसक्रीम खाने गए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने रात को कहाँ गए थे, क्या हुआ, कोई करेगा, किसी आदमी से बात नहीं करनी। मीन्स सेफ्टी का तो सभी पेरेंट्स को चिंता रहती है, लेकिन लड़की है इसलिए तुम ये मत करो, वो मत करो, ये मैंने कभी भी सीखा नहीं है। मेरी बुआ लोग भी उसी 1965 के टाइम में पीएचडी हुए थे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेके। अच्छा। हाँ, और उन्होंने अपने अपने हस्बैंड्स ढूंढे थे। किसी का हस्बैंड लव मैरिज, वो तो 5-6 साल उनसे छोटा था। फिर उस जमाने में बोलते नहीं, कुंडली मिलनी चाहिए, वो गुण जमने चाहिए। तो जो मेरी दादी थी, दादी और दादा, उनकी खुद की 1934 की लव मैरिज थी। ओह अच्छा। तो उन्होंने, मेरी दादी ने उनकी कुंडली मिला के स्मार्टली एडजस्ट कर लिया और उसके कोई 22 गुण दिखाए। अच्छा। हाँ, तो उनका जो दामाद था उसको बोला चलो मैं एडजस्ट करूँगी तुम्हारे गुण। लेकिन जो मेरे बुआ के हस्बैंड और मेरी दादी, उनका अपने दामाद से रिश्ता, एक दूसरे से तालियां लगाते थे, बहुत चीज़ों पे गपशप करते थे। इतना खुला माहौल था। खुला माहौल। नीरजा जी, ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਪਨਨੈਸ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ फ़र्क भी एग्जिस्ट करती है? डेफिनेटली वो लगा, क्योंकि जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन मैंने स्कूल में या कोई फैमिली से ऐसे देखा कि मैं अकेली जाने के लिए, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तू भाई को साथ लेके जा, या वो हमेशा चेक करते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैं, ये है कि वो तो हम मीन्स मेरे पेरेंट्स अभी भी कहते थे, पहले भी कहते थे कि हम लोगों ने इतना फ्रीडम तुम्हें दिया है, बट वो बात सीखी कि फ्रीडम के साथ साथ जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। राइट। तो फ्रीडम का मतलब स्वैराचार कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये बिल्कुल ही नहीं होता। बट द सेम टाइम वो बोलते थे कि कभी किसी से उम्र के साथ कुछ गलती हो गई या कुछ तो ये चीज़ है कि वो कभी उसके ऊपर भी डांटते नहीं थे। वो बोलते थे कि अपनी गलतियों से सीखो, ऑब्जर्व करके कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और वो दिखाते थे कि देखो बाबा, ये फैमिली में उनकी बेटियाँ मीन्स उनको सभी उनके फादर का सुनना पड़ता है, ऐसा है वैसा है। तो वो लोग मैंने देखा है कि एजुकेशन को तो किसी ने भी ऐसे रोका टोका नहीं है महाराष्ट्र में। सो साइंस थोड़ी अपनी चॉइस सी? हाँ जी। माइक्रोबायोलॉजी? यस। तो मेरा स्टडीज़ में मेरी ज़्यादा ध्यान था, एक तो बायोलॉजी बहुत पसंद थी और दूसरा संस्कृत या लिटरेचर, पोएट्री, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे
नाटक, एक्टिंग, अभिनय, और उसमें भी कॉमेडी वाली चीज़ें, ये छोटी छोटी जो भाषा एक से जो कॉमेडी बनती है, ह्यूमर होता है, क्योंकि वैसे तो ज़िंदगी इतनी सीरियस है। वैसे देखो स्त्री लोगों का लाइफ तो कैसे भी हो, अपना जो हम लोग भाव विश्व बोलते हैं, हमारी जो मन है इतना संवेदनशील, सेंसिटिव होता है, और हमेशा हमें कोई चाहिए कि हमारी मन की केयर ले ले। लेकिन ये ज़िंदगी का सच है जो इतने संतों ने लिखा कि जैसे न माता न पिता न बंधुर न भर्ता, कि ऐसा एक टाइम हमारे लिए है कि हम ही खुद को हैप्पी रख सकते हैं, हम ही हमारा ओन मोटिवेशन है। तो किसी से ये मैंने सीखा, जैसे मेरे पेरेंट्स दूर काम करते थे, तो मुझे बहुत ऐसी क्रेविंग होती थी कि मेरी माँ मुझे गोदी में लेके बैठे, प्यारी प्यारी बातें करे, या बाकी लोगों जैसे बहुत फैशन स्टाइल कुछ लेके दे। तो मुझे ऐसे पायल चाहिए, वो चाहिए। और वो मुझे बोलती थी कि तुम्हें जो भी सजना ढजना है वो पहले अपने गुणों से, ज्ञान से कुछ करके दिखाओ, फिर वो चीज़ों को महत्व है। पहले सिर्फ वो ये पहनना, वो पहनना, बहुत रंग लगाना, ये चीज़ें मत करो, नहीं तो ये चीज़ों की वैल्यू अपने एज के अनुसार धीरे 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 कम होती जाएगी और आप बहुत अकेले पड़ोगे। तो जीवन का जो मकसद है वो ज्ञान ही रखो, मरते दम तक नई नई चीज़ें। और जैसे भी अभी का टाइम है, जैसे मैं 20 साल अभी कनाडा में हूँ, तो वो देखती हूँ कि कल्चरल डिफरेंस इतना बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है, तो टाइम के हिसाब से नया टेक्नोलॉजी है, जो कोई भी है, आप कौन से भी उम्र के है। लाइक मेरी माँ को मैं देखती हूँ कि शी इज़ अपडेटेड फॉर व्हाट्सएप, जूम वगैरह। अच्छा। हाँ, शी 75, उन्होंने भी 42 ईयर्स काम किया है बाहर। तो फादर ने जितना नहीं कंप्यूटर सीखा, उतना मेरे मदर ने पूरा अपनी टेक्नोलॉजी कैसे भी बड़बड़ करके भी पूरी सीख ली। तो ऐसा नहीं है, हमारी जैसे मासी भी लोग हैं। तो वही ये चीज़ है कि हमें जो काल मीन्स जो टाइम अभी हो रहा है उसके साथ अंग्रेज़ी समझना, अंग्रेज़ी जो बात कर रहे हैं वो अपनी स्लैंग थोड़ी कम यूज़ करना, स्पेलिंग्स का। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी ये बोलती हूँ कि चलो तुम पंजाब से है, बहुत स्मार्ट हो, ये हो, लेकिन आपको स्पेलिंग लिखना है फ़ोन का तो फ़ोन ऐसा मत लिखो। आपको लाइक वो गारंटी मत बोलो, गारंटी। तो जिधर रह रहे हैं आपको इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपने यहाँ सभी रोका टोका नहीं, गवर्नमेंट इज़ गुड। तो आप अपनी तरक्की, उन्नति कैसे करें। सिर्फ मेकअप, सिर्फ पोशाक वो ज़िंदगी में ऑल द टाइम काम नहीं आएगा। वो करना है तब चाहिए, बट मकसद तो अपनी शिक्षा लेते रहो, सीखते रहो, अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप बनाओ, अपने हस्बैंड के साथ फ्रेंडशिप बनाओ। और वो जब टीम वर्क अच्छा होता है तो हमेशा एवरीबडी इज़ हैप्पी। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? वो तो बचपन से देखते आए कि हर एक घर का अपना अपना एक माहौल है और उनके रूल रेगुलेशंस है। वो रेगुलेशंस ज़्यादा लड़की लोगों पे किए हैं, ऐसा देखती थी मैं। लेकिन जब जैसे टीनेज में जाना है, आगे क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। क्योंकि घर में ऐसे मैंने सुना था कि जैसे 10वीं 11वीं में जाते हैं तो होता है कि नहीं ये करो, फिर शादी हो जाएंगी, ग्रेजुएट हो जाओ, जो भी है। तो जैसे मेरे घर में मेरे बुआ लोग भी पीएचडी थे, मासी लोग भी अपने पैरों पे थे, मीन्स लाइक बहुत अच्छे पोस्ट पे काम करते थे। मेरी नानी प्रिंसिपल थी हाई स्कूल की। अच्छा। हाँ, और दादा दादी की भी लव मैरिज थी कॉलेज की। तो वो बात कभी नहीं हुई। तो उनमें ये बात आती थी कि
आपको क्या करना है। और एक तो रहता था कि जैसे भी कुछ करके आपको मिनिमम मास्टर्स डिग्री तो हासिल करनी है, इसके लिए जो मार्क्स चाहिए आप पढ़ो। एंड उसके साथ साथ मेरे पिताजी ग्रेड 10-11 में ऐसे बात करने लगे कि बेटा एक बार तेरी डिग्री डबल डिग्री जो भी हो जाएगा ना, तो तुम पुणे में अपने आप सेपरेट रहना शुरू कर दो। रियली? हाँ, एट दैट टाइम? हाँ हाँ। अच्छा। तो पहली बार मैंने सुना और मुझे एक बार तो बहुत ऐसा लगा, वाह क्या बात है। दूसरे बार जब उन्होंने बोला और मैंने बोला सच बाबा तुम ऐसे कह रहे हो, तो बोलते हैं हाँ हाँ लड़की है तो क्या कुछ फर्क नहीं है, माँ बाप कब तक आएंगे आपकी जिंदगी में, तो तुम अभी से ही ऐसे कुछ शिक्षा लेना कि आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको नौकरी चाहिए। और वो हम ऐसे नहीं कहते कि हमें पैसे चाहिए आपके या कुछ भी, वो जो तुम्हारा पैसा है वो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अकेले रहते हैं तो रेंट का क्या होता है, कितनी चीज़ें महंगी होती है, कैसे आपको 4 भी कपड़े लेने हैं तो कितना विचार करना पड़ता है शुरू में, और जब काम करते हो बाहर तो आपको कष्ट भी कितने करना पड़ता है, जितने आप कमाते हैं उससे बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਨਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ। एग्जैक्टली नहीं, उन्होंने बोला कि फिर तुम तुम्हारे अपने आप आत्मनिर्भर हो जाना। ये एक बहुत टर्म मैंने महाराष्ट्र गुजरात में ये सुनी है, अभी भी सुनते हैं हम, कि तुम लड़की हो तो आपको तो और भी आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके हमें पता नहीं है कि मीन्स मिलेगा आपको पार्टनर, ये चीज़ नहीं, लेकिन कौन कैसे आपकी ज़िंदगी में आए। तो आपको खुद को अपने बलबूते पे रहना सीखो, बारी बारी इमोशनल बहुत होके लाइक यू नो कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं अकेली वहाँ कैसे जाऊँ, मैं रात को कैसे ट्रैवल करूँ, ये बात हमारे सामने बिल्कुल मत लाना। तो ग्रेड 4 से ग्रेड 7 मुझे आई रिमेंबर कि मैं कोई कैंप्स को जाती थी, शिविर को जाती थी, तो मुझे अकेले बैठा क्या करते थे। एक बार मैंने देखा कि सभी फ्रेंडों के माँ बाप गले लग रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मुझे 2 मिनट मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने आने के बाद मेरे बाबा को बोला, क्या हम अमेरिका में मेरी पैदाइश हुई है क्या, आप इतने ऐसे कैसे ड्राई हो सकते हो, देखो सभी लोग इतने करते हैं वगैरह। तो मेरे पिताजी बोले देखो प्यार तो बहुत है, सभी है, बट कितने लोग अपनी लड़कियों पे विश्वास करके उनको अकेला भेजते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना, नौकरी करना, बच्चों के पीछे और एक जो क्या बोलते हैं उसको सामान्य रूटीन, वो नहीं है। जहाँ हम पैदा हुए हैं, जो महाराष्ट्र भूमि में पैदा हुए, तो आपकी पर्पस उससे बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों को, बहुत स्त्रियों को हिम्मत देने की ज़रूरत है जिनमें टैलेंट है लेकिन वो डरते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं वो मैं तुम में देखना चाहता हूँ। और अभी हमने बहुत लाड़ प्यार किए, लेकिन अभी आपको जो सपोज आप अफोर्ड नहीं कर सकते 10 सूट्स वगैरह, तो 2 ही रखिए। गाना सीखना है ना, तो मैं थोड़ी सपोर्ट करूँगा। अच्छा। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करो कि आपको अभी बहुत फैशन टाइप के सूट चाहिए या गाने की फ़ी आपको भरनी है खुद को, तो आप 2 ही अच्छे रखो, तो तुम्हें वैल्यू पता चलेगी कि पैसों की वैल्यू क्या है। तो गाना कब सीखना शुरू कर दिया? गाना तो बहुत बचपन में सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि घर में दोनों भी मदर फादर के घर में माहौल गाने का है। और शास्त्रीय सीखने का पर्पस क्या था? सीखने का पर्पस वो एक तो पर्पस एक था, मैं बहुत ओपनली बोलती हूँ कि शास्त्रीय संगीत का जुड़ाव बहुत बचपन से था ही, उसमें तो कोई संदेह नहीं। बट जैसे मैंने देखा कि मैं दादा दादी के साथ रहना शुरू किया, और मेरी माँ वो अपनी जॉब के वजह से बहुत बिजी रहती थी, फादर भी बिजी रहते थे। जब आते थे तो वो लाड़ प्यार करते थे, ऐसी बात नहीं थी। बट मुझे एक जो पता नहीं कि ऐसा एक लगता था कि नहीं, मुझे अभी सिर्फ माँ के साथ कड़ल करना है, माँ के गोदी में बैठना है। वो मेरे ज़िंदगी में ज़्यादा क्षण नहीं आए। अच्छा। अभी भी नहीं आते, क्योंकि अभी भी मैं जाऊँ तो मदर किसी न किसी को भगवत गीता सिखाती है, हम आगे बैठ के बात किए तो पहले
लेकिन ये मदर के साथ नहीं, मेरी बुआ है, मासी है, जो मेरे रिलेटिव्स है, वो भी मुझे पहले पूछेंगे कि क्या नया सीखा इस बार, अपने पल्लू में क्या नए राग डाले, क्या नए कॉम्पोजिशन की, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या सीख रहे हो, किसको हेल्प कर रहे हो। वो कभी नहीं पूछेंगे कि आज क्या खाया, उधर जाके क्या मज़ा किया, इधर पार्टी की। वो टाइप के वो लोग ही नहीं है, बहुत सारे महाराष्ट्रियंस वो नहीं है। नीरजा जी, आपने 2-3 बार ये चीज़ मेंशन किया कि मेरे मन में ये होता था कि मैं मदर की गोदी में बैठी हूँ, मुझे कडल कर रही है, मुझे प्यार कर रही है, लेकिन वो ज़्यादा हुआ नहीं। हाउ डिड दैट इम्पैक्ट यू? अगर आप अभी तक भी महसूस करते हो वो चीज़ इतने बड़े होके अभी भी? हाँ, नहीं, अभी वो महसूस करना मैंने सीख लिया, और अभी वो एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे होता है ना कि वो मन में मेरे तो बात रही, क्योंकि चलो अपने ये अच्छा लगता था कि अपना माँ का करियर है। मेरी माँ स्टेट लेवल के एथलीट थी, टेबल टेनिस प्लेयर थी, और नाटक का नेपथ्य वगैरह वो सब करती थी। और मेरी जो दादी थी वो उनको बोलती थी अपनी बहू को कि वो तो उनको गजरा भी लगा देती थी, शुरू शुरू में उनको साड़ी पहना देती थी। और वो बोलती थी कि जब तू जा रही है ना काम को, वापस मत देख कि तेरा बेटा क्या खा रहा है, बेटी क्या खा रही, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हें किचन में हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक थोड़ी सी जो एक माँ की स्पर्श वगैरह वो मैं मिस करती थी, और मैं बहुत उसके बात करती थी, तो वो करती थी, ऐसा नहीं था, बट उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। सो नीरजा जी, मैं ये जब आपकी बात सुन रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब औरत बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा बिजी है। आप बोल रहे हो कि वो एथलीट थे और काम भी करते थे, और आपकी जो फैमिली थी उनको इस तरह से सपोर्ट कर रही थी कि कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी ज़्यादा जो इंडिपेंडेंस है, कहीं ना कहीं वो बच्चों को लॉस होता है इस चीज़ का? डेफिनेटली होता है? डेफिनेटली होता है। उनमें एक एकाकीपन या लोनलीनेस का एहसास होता है कि मीन्स सभी का होते हुए भी सच्ची मेरे पे प्यार तो करते हैं ना ये लोग, ये ऐसा होता है। शायद उनकी एक्सप्लेनेशन अलग हो। तो मैं ये बात मेरे दादाजी से करती थी, मासी से करती थी, बुआ से करती थी, और फादर से तो अभी भी करती हूँ। तो मुझे उन्होंने ऐसा बोला कि देखो, हर एक व्यक्ति जीवन में ऐसा नहीं होगा। वो हस्बैंड भी हो सकता है कि वो तुम्हें 10 बार आई लव यू नहीं बोलेगा, वो एक्शन से दिखाएगा कि वो आपके लिए कुछ प्यार का एक्सप्रेस कर रहा है, वो काम करके दिखाएगा, कोई कोई लोग आपके लिए कुछ बना के दिखाएगा, लेकिन वो 10 बार आपको आके गले नहीं लगेगा, और वो ऐसी बहुत मीठी मीठी भी बात नहीं करेगा। तो ये हर एक व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर होता है। लेकिन मैंने देखा है कि जैसे भी मेरी माँ के विचार थे, वो अच्छी लेखिका है, उनको पुरस्कार भी मिले हैं। अच्छा। तो वो चीज़ में देख के तो फिर मैंने बचपन में ही दादाजी ने बोला कि हर एक व्यक्ति में हर एक चीज़ नहीं होती, तो तुम्हें जो चीज़ वो नहीं मिलती तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। और वो मेरे तो बाल भी बनाते थे। मेरे बाबा बोलते थे कि तू मुझे कड़ल कर ले। तो मेरे साथ सभी जगह आते थे, कोई प्रोग्राम है तो खुद तंबोरा उठाएंगे। जो माँ का रोल है वो पूरा बाबा ने किया। तो मेरी माँ को ये पता था कि मैंने नहीं ऐसा किया ना, तभी भी ये कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको कहा ना कहा तसल्ली थी कि ये जो मैं नहीं देती टाइम, वो तेरे पिताजी दे रहे, मेरे ससुर दे रहे, तो उनको वो पता था। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहती थी, बट एक पता नहीं उनके, मेरे जो नाना जी थे, ही वॉज मिलिट्री कैप्टन एंड ही वॉज मिसिंग 11 ईयर्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो नानी थी उनको उनकी माँ ने बताया था कि देख, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक तेरा हस्बैंड नहीं आया है, शायद पता भी नहीं वो जिंदा है या नहीं। तो आप अभी वो आपके मन से निकालो, तू सौभाग्यवती है या शादीशुदा है, जो भी है। अच्छा। 2 बेटियां है आपकी। तो वो मैं के आके रहने लगी, और उन्होंने बोला कि तेरे को अभी एक ही करना पड़ेगा कि तुम ऐसे समझ लो कि तुम विधवा हो, तुम वीडो हो। रियली? हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 साल हो गए वो नहीं आए हैं। तो मेरी आजी को उन्होंने कॉलेज में डाला, उसके बाद वो ग्रेजुएट हुई, उसके बाद उन्होंने टीचर्स का डिप्लोमा किया, और उन्होंने पूरी नौकरी की। तो So did he come back? एंड 11 साल के बाद मेरे दादाजी नाना जी आ गए। 11 साल? हाँ,
वो All ब्लैकआउट of में sudden. अफगानिस्तान में थे, इराक में थे। बाद में उन्होंने इतनी मिलिट्री की कथाएं सुनी और मेरी जो बाय दैट टाइम नानी वाज एस्टेब्लिश टीचर, और उनकी नौवारी साड़ी जो हमारे ट्रेडिशनल पहनते हैं, लेकिन एक हाथ में घड़ी, पूरा पर्स वो लेके जाती थी। तो मेरे नाना जी को इतना बढ़िया लगा कि उनको भी चिंता थी कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये कैसे करेगी। Yeah. तो उन्होंने देखा कि तो मेरी जो माँ की नानी, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, तुम्हें टीचर बनना होगा या नर्स, जो भी तुम्हें अच्छा लगा, यू हैव टू गो टू स्कूल, मैं बच्चे संभालूंगी। सो इंडिपेंडेंस पे इतना ज़्यादा जोर था, आपकी जो माहौल था। नीरज जी, एक चीज़ है, अभी आपका बेटा है ना? टीनेजर है बेटा? अभी 15 साल का हुआ 15 है। साल का हुआ है। तो वो जो चीज़ जो बार बार आप जिक्र कर रही हैं कि माँ की कडलिंग की आप मिस करते थे, उस चीज़ ने आपको एज अ मदर किस तरह से इम्पैक्ट किया है? आप ज़रूर जब आप अपने बेटे के साथ बैठती होंगी, टाइम स्पेंड करती होंगी, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगी। डेफिनेटली है। हाँ। और जब मुझे बेटा आपकी मदरहुड को किस तरह से इम्पैक्ट किया उस चीज़ हाँ ने हाँ, जो मैंने चाइल्डहुड में आपके पास थी? या चाइल्डहुड में थी, बाद में भी ये ऐसी फीलिंग्स आती थी कि मैं कहीं ना कहीं अकेली हूँ या ये चीज़। बट जब मुझे बेटा हुआ तो मैंने मेरे मन में ठान लिया कि कितना भी डिग्री हो, शिक्षण हो, कितना भी पैसा कमा सकती हूँ कहाँ काम करके, लेकिन ये बच्चा जब तक अपने खुद की उसकी जो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग है, तो मेरा बच्चा मेरा फ्रेंड रहेगा। और एकदम पहले टाइम से, मैं जब से हुआ तब से वो पूरे अपने मन की एकदम बेबी था, तब से भी उसके दिल की बातें करना, उससे सभी एक्सप्रेस करके। तो कहीं ना कहीं जो मेरा बेटा है, अभी 15 साल का हुआ है, तो वो एक प्रकार का मेरा एक्चुअली काउंसलर है, इतना विजडम है उसमें। और मुझे ये बात का बहुत समाधान है कि मैं जैसा एक भावनिक तरह से और एक क्वालिटी टाइम बातें करने के लिए अपने बच्चे के लिए चाहिए, वो मैंने मीन्स वो मैं पूरा लगा रही हूँ। और उस चीज़ के लिए मैंने माइक्रोबायोलॉजी की जो मेरी दूसरी करियर पूरी थी, वो मैंने छोड़ दी। तो ये करियर मैंने छोड़ दी, लेकिन उससे मुझे दुख नहीं है कि उसकी वजह से मैं पैसा कम कमा रही हूँ, मेरा संगीत पे ही ध्यान है, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा चाहिए था कि मेरा बेटा बड़ा हो के ऐसा कभी ना समझे कि जब मेरा अभी टाइम है तो माँ को हमारे लिए टाइम ही नहीं था। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। मीन्स तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईटी वाले प्रोफेशनल जिनके बहुत डिमांडिंग आवर्स होते हैं। बट मैं मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी बोलती हूँ जो छोटे हैं, कि मैं कभी कभी उनको पूछती हूँ कि कल मैंने माँ को आपने मैसेज किया था क्लास के बारे में, आपने तो बोले नहीं हमारी बात नहीं हुई, माँ बिजी है। तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि चलो मैं आपसे उम्र से कम हूँ, लेकिन हर रोज़ 20 to 25 मिनट्स कैसे भी निकालो डिवाइड, लेकिन अपने बच्चे को अपने साथ, बेटा हो बेटी हो कौन से भी उम्र के हो, वो उसके बैठा के दिल से बात करो, जैसे आप अपने फास्ट फ्रेंड से या कोई सहेली से करते हैं। सब कुछ उनकी भावनाएं क्या है, क्या मन है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, ये बातें कभी ऊपर ऊपर की बातें मत करो। और अपना ये तो कभी सिर्फ कर्तव्य नहीं है कि 2-3 बारी अच्छा खाना दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, 4 क्लासेस में डाल दिया, ये परवरिश नहीं है। ये एक पार्ट है। बट इमोशनली अपने बच्चे से जुड़ना, उसका सुख दुख क्या है, उसकी कंसर्न क्या है, कभी वो किसी चीज़ का डर तो नहीं है, क्या है, तो जैसे हम खुल के अपने बच्चों से बात करें और सभी चीज़ों पे, लाइक अभी मेरा 15 साल का बेटा है, सभी चीज़ों पे बात करता है। उसको पता है कि पीरियड्स क्या होते हैं, माँ को कैसी तकलीफ होती है, हाउ मेंटली शी फील्स, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है। तो अपने आप मुझे आके वो पूछता है कि मॉम कैन आई रब योर बैक, लोअर बैक करूँ, या आता है पूछता है कि तूने चाय ली, मैं चाय बना के दे दूँ, तो मैं तो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, फिर कुछ तो ले लो तू तेरे लिए, और थोड़ा सा आज टेक इट ईजी, डोंट डू ओवर डू एनीथिंग, मैं आज बर्तन कर लूँगा। अच्छा। तो ये चीज़ मैंने उसको बोला नहीं कि तुम्हें आके मुझे ये पूछना चाहिए वगैरह, लेकिन डायलॉग ऐसे रखा है कि वो अपने आप जो एक सोल का बॉन्डिंग होता है, तो अपनी आप अपना बच्चों के आंखों में देख के वो पता चलना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या चीज़ चाहिए, तो वो मैं कर रही हूँ। ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ।
ਨੀਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਨਏਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? कनाडा को आके तो मुझे अभी 20 साल हो गए पूरे। और कनाडा आने के पहले जो हॉस्पिटल में मैंने बहुत 12-13 घंटे माइक्रोबायोलॉजिस्ट का भी काम किया इंडिया में पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर। और गाने के भी प्रोग्राम, तो शास्त्रीय संगीत तो हमारा मीन्स लाइक एक शिक्षा है, वो तो बचपन से शुरू है और वो जारी ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये मुझे कुछ बनना है या फेमस होना है इसलिए गाना सीखना है, ऐसा नहीं। तो अभी मैं जैसे नवजोत जी आपसे बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं हर एक को जो इमोशनल कोई कमी महसूस होती है या कुछ भी होता है, और ऑल द टाइम हमारा एक्सपीरियंस है कि सामने वाला हमें जो हम कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वही सुन को आपको हाँ हाँ जी आप तो एकदम ठीक है ऐसे नहीं मिलते, और मिलने वाले भी नहीं है। मिला तो बोनस है, बहुत लकी हो। लेकिन बहुत बारी कोई भी स्त्री है, पुरुष है, उनकी जो ज़िंदगी की लड़ाई है वो खुद ही लड़नी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो मैंने जब फिर घर में कभी प्रेशर नहीं था शादी के लिए वगैरह, लेकिन वो चाहते थे कि ये लड़की क्यों नहीं डेट कर रही है, ये लड़की को क्या प्रॉब्लम है, इतनी अच्छे म्यूजिशियंस पूछते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं, साइंटिस्ट पूछते हैं, तो तुम्हें जो आपका अपनी मेडिकल का आप बता रहे हो कि हॉस्पिटल का जो काम था वो साथ में चलता रहा और साथ में म्यूजिक चल रहा था। हाँ, दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी। 19 घंटे का काम हर रोज। जो म्यूजिक आप कर रहे थे वो अपने शौक के लिए कर रहे थे, पैशन के तौर पे कर रहे थे, या वो भी? नहीं, पैशन के तौर पे था, लेकिन मुझे वो मैंने ज़िंदगी से सीखा कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से अपना सुख हो, दुख हो, रोमांटिक मूड हो, गुस्से वाला मूड हो, गंभीर मूड हो, भक्ति का मूड हो, जो इतने सभी ह्यूमन इमोशंस हम में भरी है, वो संगीत के माध्यम से हम जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो उसका जो एक्सेप्टेंस है जो समाज से होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। लेकिन कोई बंदा ऐसे रास्ते पे खड़ा हुआ और मेरा घर में ऐसा हुआ, मुझे किसी ने कुछ बोला, ये बोला, तो कभी 1-2 बार सुने के बाद में जो कम्युनिटी वाले हमारे स्पेशल, यार ये पागल है, या यहाँ ऐसी घर की बात थोड़ी ना बाहर करते हैं, ऐसे भी चीज़ हो जाएगी। तो लेकिन कभी कभी होता है कि जो अंदर अंदर रख के हम बात नहीं कर पाते, कौन सी उम्र की बात है, बच्चा हो या कुछ हो, तो संगीत ये एक माध्यम है। कोई वाद्य बजाना, गाना गाना, इवन स्पोर्ट्स, कि वहाँ जो like थेरेपी है पूरी, वो थेरेपी सारेगामापधनी इज इटसेल्फ अ थेरेपी। हर एक अपनी ये स्वर को, अपनी एक इमोशन है, अपना एक रंग है, वो अपने शरीर से जुड़े हुए है। तो सभी चीज़ें तो हमारे दिमाग और पेट से ही शुरू होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मैंने वो देखा कि मेरा लगाव इतना बढ़ता क्यों जा रहा है शास्त्रीय संगीत के बाद, तो कोई बोलते ये ना बहुत क्रेजी है बाबा, संगीत है तो उसको ये नहीं दिखाई देगा, वो नहीं दिखाई देगा, कभी लड़के की तरफ भी नहीं देखती है, तो हमेशा अपनी अपनी संगीत में लगी है कोई किधर भी। तो ये चीज़ थी कि जो संगीत जब मैंने सुना, तो अभी भी ऐसा है, मेरे आप कभी स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं कि मैं पूरी खुद को भूल जाती हूँ जैसे पूरा, और मन में कोई भी प्रकार का जिग नहीं, कोई संदेह नहीं है, किसी का शक नहीं है, किसी का गुस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बात संगीत से ही साध्य हो सकती है। So just like a meditation. It is like a meditation. तो ये मेडिटेशन करना है, और फिर कि चलो हमें सपोर्ट मिला है पेरेंट्स का, हमें भगवान की दया से आवाज़ मिली है, फिर वो आवाज़ पे काम करना, जो अपनी वॉइस की हेल्थ है उस पे काम करना। और फिर मैंने वो जैसे पुणे में हमारे कैंसर सिप्ला सेंटर्स वगैरह है, तो मैं पेशेंट्स के लिए गाती थी। और मैंने बहुत सारे टाइम पेशेंट्स से मेरे प्रोग्राम के बाद सुना कि वो बोलते थे, ताई आपको पता है मेरे को अभी मैं 3rd स्टेज कैंसर पे हूँ और इतने पैर दुखते हैं, इतना कुछ होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट पता है मैं 2 घंटे आपके उधर बैठी हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं हो रहा है, मैं कम्प्लीटली पेनलेस हूँ, मुझे कोई भी चीज़ की। और यही वैंकूवर में भी मैंने ये अनुभव लिया है इन हॉस्पिस टू। अच्छा। तो 20 साल हो गए मैं यहाँ आ गई, और मैंने ऑनलाइन मेरे पति को ढूंढा,
और वो सभी संगीत और मेरे को यहाँ क्या करियर चॉइसेस है, ये सभी मैंने विचार करके, इतनी सारी करियर थी, इतना सारा माहौल, पेरेंट्स सभी को छोड़ के मैं 2001 में वैंकूवर में आ गई। ਨੀਰਜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲਿਸਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਰ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਐਨੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ, ਹਾਂਜੀ। ਫੁੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਹੀ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਨੀਰਜਾ जी। हाँ जी नमस्ते। मैं जो घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ वो है, पहले संगीत की शिक्षा मेरी ग्वालियर घराने से हुई, और उसके बाद जो आगे बहुत साल मैंने सीखी वो है किराना घराना। उनका जो किराना का जो फाउंडर है वो अब्दुल करीम खां साहब जी, एंड भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी। तो मैं किराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन जब से कनाडा में आ गई हूँ तब से जहाँ संगीत ये ऐसी समंदर है कि कितना करो उसमें कम है, इसके लिए मैंने जो भी मुझे अच्छे अच्छे गुरुजन यहाँ भी मिले, उनसे भी थोड़ा मेवाती या जो भी है थोड़ा जयपुर अतरौली, तो बहुत सारी घरानों से मैंने नए नए बंदिश या कुछ सीखने की कोशिश की है। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੁੱਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਬਸ ਇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸ करके ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मैडम साहिबा, आप जी ये बताएं कि आप ये जो डिफरेंट बीट्स हैं, ताल, हाँ जी, उनमें उसमें से कौन कौन सी बंदिशें आप किस किस राग में और अप्रचलित रागों में गाते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ना, पहली बार मुझे कनाडा में किसी ने पूछा है ये। थैंक यू सो मच। हाँ, तो एक ताल की बंदिशें है, देन 3 ताल की बंदिशें है। ये तो सिंपल है, ये तो आम है, ये तो आम हर बंदा गाता है। मेरा मतलब कहने का जो है वो है जो वैसे सवारियां, हाँ, और 10:30, 11:30, 11th and 13th and 15th and 17th बीट्स का मेरा मतलब कहने का ये अब तो तुम फिर मत्त ताल और जो वो एकदम चैलेंजिंग जो बोलते हैं, बहुत आगे जाके जो लोग गाते हैं, तो हाँ हाँ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੁੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਓਕੇ श्योर। एक पंजाबी शब्द है, वो मैंने एक मूवी के लिए गाई थी, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, तो मैं वो पेश करती हूँ। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, मीठे तेरे बोल, मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। हले यारा हले यारा, हले यारा हले यारा, खुश खबरी बल बल जाओ, ओ बल बल जाओ, निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम, निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम, खूब तेरी पगड़ी
मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी, मीठे तेरे बोल। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ये पहली चीज़ है कि जैसे मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र की हूँ, हाँ। तो महाराष्ट्र एंड पंजाब ये दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक फ्रेंड्स रहे हैं। तो जैसे मैं अभी जो खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, ये जो मैंने शब्द गाई, वो शब्द लिखी है नामे। तो ये जो संत नामे जो पंजाब में आते थे, 6 महीने रहते थे, वही हमारे मराठी संत नामदेव है। उन्होंने जो मराठी में अभंग लिखे, तो हम लोग अभंग बोलते हैं कि अनब्रेकेबल, तो वो जैसे उन्होंने अभंग लिखे वैसे उन्होंने बहुत सारी शब्द जो गुरु ग्रंथ साहब में है। तो पहली चीज़ है कि उसमें कल्चरल ताल्लुक़ बहुत नज़दीकी है। दूसरी चीज़, वो दोनों लोगों का स्वभाव जैसे देखो तो दोनों को भी वो कहानी कहाँ वॉरियर की जो जेनेटिक्स है वो दोनों में भी है। तो एक जो पंजाबी का मुझे बचपन से उसमें जो एक ताकत है, एनर्जी है, उसमें जो एक सेलिब्रेशन का मज़ा है, तो वो हम लोग जब इतनी मूवीज़ देखते थे तो मुझे, मैं सभी का देखती थी, एंड देन मुझे कहीं ना कहीं लगा नहीं है ऐसा एकदम बिंदास होके गाना चाहिए। तो मैं वो गुरदास मान जी के कोई कोई गाने गाती थी, फिर सूफ़ी गाने भी गाती थी। और एक बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र से जो आए हुए हैं वो सेंट्रल स्टेट है, तो वही इमिग्रेंट्स बहुत रहते हैं। तो हम एक ही कोई कम्युनिटी में नहीं बड़े हुए, जहाँ हमारे नेबर्स पंजाबी है, बंगाली है, कन्नड़ा है, उर्दू है, सभी रिलीजन्स के लोग हैं, और वो एक दूसरे से बहुत प्यार से भाईचारे से रहते हैं। वहाँ कोई एक दूसरे में कंपटीशन नहीं है जी। तो वहाँ का जो माहौल है, उस माहौल के वजह से मैंने पंजाबी गानों में इंटरेस्ट ध्यान दे के सुनना शुरू किया, कैसेट्स लेके आई, और शब्द कोई बाकी के गाने भी गाए, कन्नड़ा भी गाए, संस्कृत तो गाती हूँ, मराठी भी गाती हूँ, और हिंदुस्तानी भी सभी लैंग्वेजेस में गाती हूँ, लेकिन पंजाबी का ताल्लुक़ मेरे बहुत बचपन से जुड़ा हुआ है। ओके, आपके साथ एक सरप्राइज कॉलर हैं, अभी बात करना चाहेंगे। हेलो। हाय। हेलो। अब नीरजा ने पंजाबी की बात की तो पंजाबी नेबर को तो आना था ना। ओह वाओ। Hi Neerja, it's a real blessing to have you in my life, and आपको more than 15 years से मैं जानती हूँ, and we have started our journey from a next door neighbor to a very good friend, then a great support system, और उसके बाद आपने मेरे बच्चों को म्यूजिक सिखा रहे हो, so it's real a beautiful journey। अभी देखते हैं कि नीरजा जी ने आपको पहचाना भी है या नहीं। सारिका बोल रही हैं। एग्जैक्टली, सारिका गुप्ता। सारिका ने मुझे रात को 12 बजे भी फोन किया, तो मैं एक शब्द पे मैं पहचान जाऊंगी कि ये सारिका ही है। यस। ये बॉन्डिंग हमारे में डेवलप हुई, और मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल या कहीं पे कुछ कोट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि having 10 friends in 1 year is normal, but having one friend for 10 years and plus is a very special feeling। Wow। So Neerja is a real blessing, और मुझे like even my family feel more secure कि चलो मेरी बेटी is in the safe hand। and छोटी सी मुश्किल, बड़ी सी मुश्किलें, हर चीज में we were all together and we have seen ups and downs in both our lives, but we have come out of that and now we are good friends। नो, ये तो बात है सारिका, थैंक यू सो मच। मैं तो इतना नज़दीकी सारिका से ज़्यादा मीन्स और किसी को ना जानूँ, लाइक सगी बहनें भी शायद इतनी इकट्ठा नहीं रह पाती है, यू नो, अलग अलग, बट एक ही दीवार दोनों के भी घर के अंदर, बट इतना ही नहीं, बट दोनों की भी जैसी ज़िंदगी है, चढ़ उतार, उसमें दोनों भी एक दूसरे के पूरे साथ रहे हैं, दिन हो, मध्य रात्र हो, कुछ भी हो, और
अभी भी वो है और मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी जो छोटी बेटी है, जी। जिसको मैं वो 2 साल की थी तब से गाना सिखाती थी, वाह। और वो मेरे गोदी में बैठ के भी गाती थी। मीन्स वो जो, तो मैंने वही मेरा कन्वर्ट किया जो आपने मुझे पहले पूछा था, हाँ। कि जो चीज़ कभी होती है ना कि एक माँ का, तो आप मिस हम, करते हो। हाँ, जो मिस करती थी, तो मैंने वो डिसाइड किया कि जो भी अपने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी है, जिनको ज़रूरत है, वो मुझे मेरे गोदी में बैठ के मैं उनको माँ जैसे, मासी जैसे करूँ, तो किसी को और भी प्यार मिले, तो वो और उनकी ज़िंदगी। और सारिका को तो पता है, मैं तो उनको डांटती भी थी जी। आगे सारिका जी, बढ़ने के थैंक यू लिए। सो मच। थैंक यू डियर। थैंक यू। Thank you. And Neerja, हाँ हाँ, there is another surprise for you, so just give me 2 more minutes. वाओ, 2 more minutes. Yeah. Do we have to hold on the line? Yeah. I have my daughter on the line. Oh, really? Uh-huh. Yeah. हाय Hello. नीरजा आंटी, हाय समायरा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, क्या कर रहे हो? Well, today I just want to say I can't thank you for how much you've done for me, because music is my life and I couldn't have done this without you. So today I'm going to dedicate a song for you. So I really hope you enjoy it. वाओ, Okay, go ahead, please. मैं तेरे समझा बाकी ना तेरे बिना लगेगा जी, मैं तेरे समझा बाकी ना तेरे बिना लगेगा जी, तू भी जाने प्यार मेरा क्या करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, जान मेरी, Wow. जान मेरी. Beautiful. Very nice. थैंक यू सो मच समायरा, लव यू बेटा। Thank you, beta. Thank Thank you you. so much. Thank Thank you. you. किस तरह लग रहा? Oh my God, I'm so happy, so happy. Oh my God, I never imagined. They are like, she's in my heart since she was born. इतनी छोटी. But हमेशा मैं बोलती थी सारिका को कि जैसे कौन कह रहा है, एक हम कुछ सीखते हैं तो हमेशा कि कौन क्या सोचेंगे, ये करके आगे क्या, ऐसा मत विचार करना। जो भी है, एक ज़िंदगी है, जो करना है सीखना है, कभी तेरे को भी आगे बढ़ना है, मैं बच्चों को संभाल लूँगी, नया जॉब है, कुछ भी है, तो हम दोनों भी एक दूसरे के साथ एक जुड़वा बहनों की तरफ बहुत Support है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੁੱਲ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। बस ये अभी आजकल के गाने वाले की कहेंगे, आजकल के गाने वालों को आप क्या कह सकते हैं जो आजकल गाना गाते हैं ना, ये लाइट वाले भी जो हैं। और आप अपना दोबारा नंबर बोल सकते हैं चाहो तो। हाँ जी, नमस्ते प्रोफेसर जी। मेरा नंबर है 778-288-4811 और मेरा फर्स्ट नेम है नीरजा, NEERAJA। और अभी आपने जो पूछा तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्योंकि मैं 22 साल से यहाँ गाना सिखा रही हूँ, और जो नए गायक हो रहे हैं, नया जो सीखते हैं या अपने एल्बम यूट्यूब वगैरह वो करने में अभी बिज़ी है, तो मुझे एक बात है कि कभी भी कोई सीखने का शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसके पीछे मेहनत करनी भी पड़ेगी, उसके पीछे हमल होके मीन्स लाइक जो भी अपने टीचर है, मेंटोर है, उनके साथ रिस्पेक्ट से वो सभी चीज़ें आपको मन से सीखनी चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि मेरा 3 महीने में मेरा एल्बम कुछ मुझे निकालना है, वो तो कोई प्रसिद्धि या कोई पहले ही वो बात आप रखो मन में, बट पहला है कि उसके पहले पूरे ढंग से सीखो, पूरे ढंग से उसका रियाज मीन्स प्रैक्टिस, साधना है, उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। और जो भी गाते हो, वो फिल्म का हो, गज़ल का हो, कहाँ का भी हो, उसका पूरा का पूरा मतलब पूरा अंडरस्टैंड करके गाना है, और ख़ुद को जानना है कि खुद की कैपेसिटी क्या है। या मेरे किसी को भाई को लग रहा है कि मैं ये गाऊँ, मेरे माँ को लग रहा है मैं ऐसे गाऊँ, तो उसकी है कि आप खुद को जानो पहले कि आपको क्या गा के आपको दिल
को, आपकी बुद्धि को, मन को समाधान होता है, जिस चीज़ से आपको शांति लगती है वही चीज़ आप सीखो और वही आप पेश करो या वो आप उसकी प्रैक्टिस करो। ਜੀ ਨੀਰਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो बात है, जैसे मैं कनाडा में आ गई और जितने भी हमारे महफिलें होते हैं या गेट टुगेदर्स होते हैं और सिखाती हूँ मैं पहले से, तो उसमें जो अपनी इंडिया की जो कम्युनिटी की हम बात करते हैं, तो एक कम्युनिटी में इतनी विविधता है, तो कोई कोई कम्युनिटी जो है तो उनमें मैं प्रोमिनेंटली देखती हूँ कि जो महाराष्ट्र की मराठी कम्युनिटी है, फिर साउथ की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी और कर्नाटिक ये दोनों भी लगान से सुनती है। तो ये दोनों कम्युनिटी एंड बंगाली कम्युनिटी जो है वो भी एक बड़ा शहर है, कलकत्ता या वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है कि सभी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन जो प्रिडोमिनेंट कम्युनिटीज़ है कि जो अपने बच्चों को सिखाते ही सिखाते हैं, वो है एक साउथ इंडियन है, महाराष्ट्रियन है, बंगाली है, उत्तर भारत के भी है, बट उनमें नंबर बहुत कम है और उनका सीखने का और सुनने का भी इरादा अलग है कि एक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को नेसेसरी नहीं कि वो महफिल करे। तो मैं बोलती हूँ कि क्यों नहीं करे, नहीं इतने लोगों के सामने बैठ के वो कैसे गाएगी। तो मैंने बोलेगी कि देखो वो गाने के लिए बैठी है, वो कोई फैशन शो या मीन्स मकसद क्या है उस पे स्टेज पे निर्भर करता है। तो कोई भी है वो अच्छे मीन्स लाइक स्टेज पे बैठ के जब संगीत जो है वो हमें पूरा ईश्वर से जुड़ता है, सामने वाले से पूरा एक सोल जैसी एक कनेक्शन होता है, तो आप उसमें लिमिट मत करिए कि ये सिर्फ घर में गाएगी या ये सिर्फ नॉलेज के लिए करेगी। वो उसको नहीं गाना है बाहर, नहीं गाना है, ज़रूर गाना है। सो आसमान खुला है उसके लिए, आसमान खुला है। और मैं ये हमेशा समझती हूँ कि जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की मैं विद्यार्थिनी हूँ और विद्यार्थी कहती हूँ, कोई गुरु या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो चीज़ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इंग्लिश म्यूज़िक पसंद नहीं है या चाइनीज़ म्यूज़िक पसंद नहीं है या जो भी अंग्रेज़ी गाने हैं या दूसरे लैंग्वेज के गाने हैं। तो चीज़ ऐसी है कि संगीत तुम कोई भी सीखो, भारतीय शास्त्रीय संगीत जो सीखता है उसको कोई भी गाने सीखने में, गाने में, उसका म्यूज़िक बनाने में इजी होता है। क्योंकि बहुत सारे कॉकेजियन लोग मेरे पास सीखे हैं जो सर्क द सोले के गाने वाले थे, जो लोग नॉन जैज म्यूजिशियंस हैं, अमेरिका से भी आते हैं या और मेरे साथ में देते हैं डॉक्टर टिमोथी वैन क्लीव। सो ਕੌਕੇਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਾਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ हेलो। ਹਾਂਜੀ, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। How are you doing, नवजोत जी? And नमस्ते नीरजा ताई, चरण स्पर्श। और नमस्ते, वाओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी पहचान लिया हैं? आपने है हाँ जी, अपने स्टूडेंट को? ऑफ कोर्स। कितनी देर बाद बात हो रही है आपकी? नहीं, अभी मिले थे हम लोग। अभी मिले थे? हाँ नहीं, फिर भी मैं जगप्रीत के आवाज़ को तो कभी भी नहीं भूल सकती। मेरे ऐसे सभी है कि मैं वो बोल रही हूँ कि रात्रि को भी फ़ोन किया किसी ने तो उनके 2 शब्दों पे मैं आवाज़ किसका है वो पहचान सकती हूँ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ 에ਅਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि नीरजा ताई, आपने हमको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स दी हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है और मैं हर रोज़ कहता हूँ कि जो क्योंकि हम एक्चुअली हमारी स्टोरी ऐसी है कि हम एक तरह में मिले थे, तो मैं उस टाइम वो पार्टिसिपेट कर रहा था कंपटीशन में। एंड नीरजा ताई, दिस वाज व्हेन आई वाज अबाउट 13 or 14, तो ताई ने कहा आपके पास बहुत पोटेंशियल है, तो आप ज़रूर मेरे पास आएगा। एंड आई definitely do not, like, I was so happy
कि मैं नीरजा ताई के पास गया, क्योंकि वहां से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड वो जो मेरे को एक क्लासिकल म्यूजिक में जो इंटरेस्ट पड़ा, वो ताई आपके वजह से वो चीज जो है वो मेरे जहन में क्लासिकल म्यूजिक ही बजता है आजकल। Really? मैं उस चीज को बहुत, मैं उसको क्लासिकल म्यूजिक को बहुत एंजॉय करता हूँ, और मैं आपके लिए कुछ डेडिकेट भी करना चाह रहा था। क्या बात है। मुझे एक बात बतानी है कि जब मैं बताऊं, है मिनट हमारे पास, हाँ, हाँ। कि जैसे जगप्रीत को मैंने पहली बार दूसरी बार मैं आई वाज अ जज एट बॉलीवुड इकतारा कॉन्टेस्ट की, और इतना सुंदर गा रहा था, ताल ये वो मीन्स लाइक लेके, इतना बाकी का नहीं था। तो अभी तो इतने साल हो गए, मैं तो बोल सकती हूँ मीन्स लाइक, और इतना, लेकिन उस टाइम जगप्रीत का आवाज़ जो प्यूबर्टी में जो होता है ना आवाज़ की चेंज, तो वो ब्रेक होने का टाइम था। अच्छा। और इतना क्या बोलते हैं, इतना सुंदर गाया है वो। लेकिन ऐसे ही होता है ना कि जो लोग सिर्फ बहुत टेक्नोलॉजी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, तो उनकी इम्प्रेशन मीन्स हर एक, तो उनमें जैसे हम लोगों में कुछ बात हुई, तो मैंने बोला कि मुझे तो सबसे जगप्रीत का वो जो ताल, लय, ध्यान, विषय, उसकी फीलिंग्स, अच्छा। ये सबसे माहिर है। लेकिन उसका उस टाइम थोड़ा सा आवाज़ ब्रेक हो रहा था, तो मैंने बोला कि ये फिर उसकी कुछ भी गलती नहीं है, उम्र की साथ है, और ये जाएगा 1-2 साल के बाद। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई गलत है। हाँ। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इतना बाकी लोगों को चैलेंज किया कि आप मुझे बताओ ये ताल कौन सा है, दूसरे ने ताल कौन सा गाया, उन्होंने बीट कहाँ से दिए, उनकी कहाँ एनर्जी दिखी। डर गए लोग। तो मीन्स लाइक आई वाज लाइक सो स्ट्रांगली विथ जगप्रीत। और वो ऐसा नहीं कि मैं उसको जानती थी पहले, लेकिन वो मुझे अंदर से था कि नहीं, ये ही सच्चा हीरा है यहाँ। अच्छा। और बाकी के लोग जानते नहीं, तो मुझे उसके लिए ये बातें, तो आधा घंटा हमारा बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा था। अच्छा। फिर मैंने बाहर आके बोला जगप्रीत को कि डोंट वरी, बट आप सीखते रहो और आवाज़ की चिंता मत करो। जगप्रीत ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी, हाँ। ਤੁਸੀਂ जी जी डेडिकेट मैं, करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ कुछ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी हाँ जी, और मैं बस एक और चीज बताना चाह रहा था कि एक बारी पंडित जसराज जी, जो कि बहुत ही लेजेंडरी क्लासिकल म्यूजिशियन और सिंगर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में, तो एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, और एंड दिस इज हाउ अमेजिंग ताई इज। उन्होंने मेरे को इतना अच्छा सिखाया कि मैं वो उस टाइम मैं क्लासिकल म्यूजिक मतलब मैं शुरू ही कर रहा था उस टाइम पे, और by her blessings, by all of those things, you know, I won that competition, judged by Pandit Jasraj ji, and I was so lucky to have been blessed by Tai, and you know, सारेगामापा obviously उसके बाद तो सारेगामापा का भी जर्नी मेरा रहा है, जैसे काफी लोगों को पता है। तो मैं बस एक चीज मैं डेडिकेट करना चाह रहा था। जरूर। जग करता रे तू ही अनंत बधावत दीनो, जग करता रे तू ही नैया मोरी मझधार भंवर में, नैया मोरी मझधार भंवर में, तुम ही करोगे बेड़ा पार, जग करता रे तू ही, जग कर जग कर जग करता रे, जग करता, जग करता
अच्छा जगप्रीत, Beautiful. बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ਜਗਪ੍ਰੀਤ थैंक यू सो मच। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ थैंक एंड आई यू एम सो मच। ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी। कभी भी कुछ भी है, संगीत में है जो भी, आपको तो वो पता है, आई एम ऑलवेज विथ यू, राइट? हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच ताई। दिस इज सच अ वंडरफुल मोमेंट एज ऑलवेज एंड थैंक यू नवजोत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ थैंक यू जगप्रीत। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਕਾ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਰਹੀ? वो तो हमेशा जो तलाश थी कि क्या बनना है, क्या करना है, और ये जो हम बोलते हैं कि जिसका व्यक्तिमत्व हमें खुद का भी विकास करना है, तो उसके पीछे तो पूरा क्रेडिट है, मेरा पहला क्रेडिट जाता है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, और मेरे मदर फादर, और जो लोग बचपन से मैं मिली हूँ, बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह, और ये सभी का। और दूसरी चीज़ है कि जैसे हम लोग बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं कभी फैमिली में, कि तू ये मत कर, इधर मत जा, अकेले मत जा, इधर बात मत कर, तो मुझे लगता है कि हम खुद को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अपना मन, हमारा दिल, यू हैव टू कीप इट ओपन, एंड जो एक्सपीरियंस है कि चलो कोई बात कर रहा है, हम सपोज़ मिले, कोई एयरपोर्ट पे मिले, या मीन्स लाइक जैसे बैठे हैं, तो हमें इतना तो पता होता है कि बात करना अपना एक गट फीलिंग होता है। तो सबसे चीज़ है कि आपको खुद को पहचानना चाहिए, और खुद में जैसे एज अ थर्ड पर्सन खुद को देख के कि मेरे में पोटेंशियल क्या है, क्या चीज़ नहीं है, तो कौन सी चीज़ों पे मुझे काम करना है। सो इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन, हाँ, पूरी की पूरी अपना जो चिंतन मनन जिसको बोलते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला कि नहीं 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 ये हमारी सोसाइटी की रीत है, या ये एक पद्धत है, या हमें ये दिखाना है, या तुम ऐसे करो तो लोगों को ये लगेगा। तो मेरा हमेशा कहना है किसी को भी कि लोगों को क्या कहना है, उससे खुद को हम पहचाने, और खुद को क्या करना है, खुद कैसे आगे बढ़े। और ये सब करते हुए जितना भी हम्बल, जितने भी पोलाइट होके, जितना भी दूसरे के लिए कोई हेल्प कर सकते हैं, दूसरे के लिए जो भी कर सकते हैं, वो जितना हम करें उतने हमारी व्यक्तिमत्व विकास के लिए हमारा बहुत ये मदद होती है। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 40 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕੋ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ 14 ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ फ़ोन नंबर प्लीज दौरे बोल दो। थैंक यू। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो लैंग्वेज के बारे में आपने मुझे बोला, तो मेरी मातृभाषा है मराठी, तो वो तो घर में है, लेकिन उसके साथ साथ जो परवरिश में हुई वो है संस्कृत। तो संस्कृत है कि ऐसी लैंग्वेज है कि वो सिर्फ कोई धर्म की लैंग्वेज नहीं है। तो जितना संस्कृत आप समझते हो तो आपको बाकी की लैंग्वेज बहुत ईजी हो जाती है समझने के लिए। फिर कन्नड़ लैंग्वेज है, वो भी जो मैं किराना घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो वो सभी नॉर्थ पार्ट ऑफ कर्नाटका, तो उसमें अपने आप मुझे कन्नड़ी आ गई, पता नहीं उसके लिए अलग एफर्ट्स तो नहीं किए कुछ भी। फिर जो है बंगाली, तो मेरे ग्रैंडफादर ने बचपन में मुझे ग्रेड 3-4 में लिखना और बोलना दोनों भी बंगाली सिखाया, क्योंकि वो खुद उन्होंने गीतांजलि का ट्रांसलेशन करवाया बंगाली से। और रही तो मैं छोटी थी, तो मैं जहाँ रहती थी वही गुजराती माहौल बहुत था, तो वो ही सोच के, क्योंकि सभी फ्रेंडों ने हमारा एक था कि मेरे घर में तो आएगी तो गुजराती बोलेगी, तेरे घर में आऊँगा तो मराठी बोलूँगा। और हिंदी तो ज़्यादा सीखी नहीं है, लेकिन दूर
दूरदर्शन जो है टीवी, वो देख के, टीवी की न्यूज़ देख के, और फिर हिंदी कनाडा में आके ज़्यादा बोलना शुरू किया। पंजाबी की जो बात है तो पंजाबी भाषा जो है वो गाने के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, जो गुरमत संगीत है वो सभी करके, उनका जो इसेंस है वो सब सुन के, वो सभी शब्द जो है जैसे हम स्मरण, सिमरन, वो जो जैसे है तो वो उसका अभ्यास करके पंजाबी भी पूरी समझ में आती है। ओके, वेस्टर्न लैंग्वेजेस भी? वेस्टर्न लैंग्वेज, थोड़ी यूरोपियन लैंग्वेजेस समझ में आती है, क्योंकि उनके साथ मैंने कोई सर्बियन लैंग्वेज में वगैरह भी गाने गाए हैं। उसका जो मतलब है वो जैसे तमस, तोमस वगैरह, वो एकदम संस्कृत के नज़दीक है। तो संस्कृत एंड जर्मन भाषा की जो अरेंजमेंट है, उसका ग्रामर है, वो बिल्कुल सिमिलर है। उसका मतलब ये है कि संस्कृत इज़ नॉट ए इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत इज़ एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं वो उसमें हम लोगों के और जो यूरोपियन लोग हैं उनके जीन्स मिलते जुलते हैं, तो इसलिए वहाँ से ये सब भाषा आई है। और अंग्रेज़ी भी है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि संस्कृत में हम लोग बोलते हैं पितर या पितृ, वो इंग्लिश में फादर हो गया, Yeah. पुत्र हो गया, उसमें मदर, देन मातृ। सो वो सभी जो चीज़ें हैं, परिमिति बोलते हैं उसको, पैरामीटर्स बोलते हैं हम लोग। सो ये सभी लैंग्वेज की जननी संस्कृत है, इसलिए मैं कोई लैंग्वेजेस बोल पाती हूँ, कोई समझ पाती हूँ। तो मेरा जो आप मेरा नंबर चाहते हो ना? ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ? Is it line 2? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਨ 2। नवजोत जी, मैं नीरज बोल रहा हूँ। नमस्ते नीरजा ताई। ओ नमस्ते नीरज जी। हाँ जी। वाओ, आपको पता कैसे चला? ये देखिए हम ऑन एयर बात कर रहे हैं ना, पता कैसे चला मीन्स क्या है आपका मतलब? नहीं, ऐसे नहीं, नीरज जी आ गए तो मुझे बहुत मीन्स लाइक खुशी लगी कि इसलिए मैं एकदम क्या बोलती है, मुझे बहुत खुशी लगी, इसलिए ऐसा पूछ रही हूँ। देखिए कितने लोग आप आज सरप्राइज करके गए आपको, है ना? आर यू सरप्राइज्ड? यस, नीरज जी, हाँ जी नीरज जी। मुझे छिपाना चाहिए था नाम, लेकिन मैंने बता दिया। नहीं, फिर भी मैं, आपने नाम भी छिपाया होता है तो मैं आपकी भाषा सुन के भी मैं पहचान जाती हूँ। हाँ जी नीरज जी, की कहोगे? अपने को बहुत थोड़ा जैसा समा बाकी बचा। जी जी, थैंक यू फॉर कीपिंग आपने इनको इनवाइट किया और मुझे भी समय दिया आने के लिए। मैं क्षमा चाहूँगा लेट आया, लेकिन नीरजा जी जो है एक सितारे की तरह से है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यहाँ जी। पर, और जो शास्त्रीय संगीत को बढ़ाने में और बच्चों को बढ़ावा देने में, इवन हमने भी, जैसे मैं ICA वैंकूवर संबंध रखता हूँ, तो ICA में भी इनका बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है, और भी जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह बहुत कुछ करते हैं नीरजा जी। अगर हम लोग बताना शुरू करेंगे तो घंटा निकल जाएगा इसी में। बिल्कुल। तो आप बधाई के पात्र हैं, आपने इनको आमंत्रित किया और अपने शो पे लिया, इतने जो है ना, और मतलब ये तो मतलब ज्ञान की भंडार है। इनके पास तो कमी नहीं है। ज्ञान शेयर करते रहांगे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੀਰਜ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू जी, नीरज भाई, थैंक यू सो मच। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਬਣੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ जरूर बुलाओ मुझे, मैं कभी भी आ जाऊंगी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਨੀਰਜਾ ਆਪਟੀਕਰ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ 778288 4811 ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ? 778 288 4811 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ।